लास्ट ईयर नागपुर में इतना हैवी रेनफॉल हो गया था दैट एयरपोर्ट रोड पे इधर इधर तक पूरा पानी आ गया था। तो उधर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने पकड़ा, तो वन गाय वाज होल्डिंग माय हैंड लाइक दिस, अदर गाय वाज शूटिंग, और दूसरा वाला मेरी चप्पल पकड़ के खड़ा हुआ था कि माहौल बना हुआ है मामा, ऐसे वो Hello everyone, I am Drishti Sharma and I am a journalist, and today I am joined by Manoj, who is one of... Drishti. Today we are taking an interview of interviewer. तो आज ना आप नहीं, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ because we have seen only Drishti to take interview of multiple personality, but आज ऐसा नहीं होगा. I think this is the first time I am nervous about answering questions to someone. That's very nice. Well, journalist को interview करना is like कि भाई बहुत difficult task है for me as well. Let's see how it goes. Okay, so Drishti, आगे बढ़ते हुए ना सबसे पहला I'll ask you a question. As a young journalist, woman journalist specifically, आपको किस तरह की परेशानियां आई है अब तक के in this field? So first of all, I'll start with कि when I had proposed this idea of becoming a journalist to my parents were pretty much against it. Okay. Because ये एक बहुत बड़ा टैबू आ चुका है इंडिया में that journalism and the media field is not very safe for women. Okay. Long working hours, no working hours actually. तुमको रात में कभी भी जाना पड़ता है बाहर. And I was staying in Bangalore. My work timings were very weird, like 4 a.m. ka shift, coming back home at 1 a.m., 2 a.m. and living alone. So my parents were quite against it. But धीरे धीरे even they realized कि this is what I want to do. And उसके obviously मैंने पढ़ाई भी उसी में करी है, तब मैं सिर्फ वही करूँगी. So they became okay with it. But as I stepped into the real world of journalism, I remember going to this place called Ganga Jamuna in Nagpur, which is called as the red light area of Nagpur. Right. तो I remember मैं उधर अपनी दूसरे दिन गई थी अपनी स्टोरी कवर करने के लिए, and I was waiting for my camera person. तो तभी उधर एक जन one man came up to me and he asked me कि तेरा रेट क्या है? Wow. Yeah. So मैं थोड़ा शॉक हो गई कि मैं इसको आंसर कैसे करूं, बिकॉज किसी ने आज तक पूछा नहीं है. एंड देन देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो उसने बोला कि हट, तो फिर वो चलो हट गया. देन दूसरा इंसान विद इन 30 सेकेंड्स अनदर पर्सन केम अप टू मी, कितना लेगी ये रात का? सो आई वाज शॉक्ड. आई रियली वांटेड टू स्लैप दैट मैन, बट उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग चलता नहीं कि करे क्या. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट बीइंग अ वुमेन जर्नलिस्ट is tough, but इधर काफी ज़्यादा majority even men's की है. Right. When you see so journalism. do you feel like it's a fun for you to do that journalism wala job? I love it. I always wanted to become a journalist, but looking at the competition and being very honest over here, when we go for a press conference or anything, the room is dominated by male journalists. Right. And sometimes they don't let a woman speak up because obviously their voice is much more stronger than a woman's voice. They tend to suppress it, and that is very demotivating for a person like me at least. And ठीक है, I might look a bit young वगैरह also. They all are very senior journalists. काफी टाइम से 20 years से, जब तक मैं born भी नहीं हुई थी तब से वो लोग फील्ड में हैं. So एक वो थोड़ा चैलेंज आ जाता है कि हाउ टू टैकल दैट एंड हाउ टू मेक योर स्पेस इज द मेन थिंग इन जर्नलिज्म एक्चुअली. वेल यू नो व्हाट गाइस, सोसाइटी में एक चीज गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपको कि आपने भी सुनी है, वह ये कि देखो शर्मा जी की बेटी क्या कर रही है, शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है. एंड टुडे वी हैव शर्मा जी की बेटी itself who is doing journalism and who is inspiring lot of young women as well to pursue the same thing in journalism, right? Yes. So my question is कि what would you suggest, और ऐसा कौन सा ऑप्शन सजेशन आप देना चाहेंगे to all those young women journalists जो इस इंडस्ट्री में जस्ट अभी कदम रखने का सोच रहे हैं या फिर जर्नलिज्म करने का सोच रहे हैं? आई थिंक very simple statement would be fearless. If you are fearful,
तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हम्म, तुम अगर तुमको कोई स्टोरी करनी है, यू शुडंट बी टेकिंग अप्रूवल ऑफ समवन, या फिर यू शुडंट बी वेटिंग फॉर समवन्स अप्रूवल फॉर दैट। राइट, नंबर वन, तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, कोई और ले लेगा, बिकॉज जर्नलिज्म इज अ वेरी फास्ट पेस वाला फील्ड, यू नो। तुम नहीं करोगे, इन द नेक्स्ट 2 minutes somebody else will break the story. नो डाउट। So you can't sit back and wait कि अरे मेरे को अप्रूवल ही नहीं आया वगैरह। You have to be on your tiptoes कि तुमको जब बोले बाहर तुमको जाना ही पड़ेगा, you do not have an option। और तुमको जिससे बोले उससे तुमको बात करनी पड़ेगी to know what actually the story is। उस टाइम पे I've covered a lot of stories where you know family में किसी की डेथ हो जाती है and the victim is not, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स दे आर नॉट कंफर्टेबल टू स्लीप टू स्पीक अप, बट यू नो तुमको वो सब थोड़ा इमोशनल पार्ट कभी कभार साइड में रख के you have to be act very professional because you have to cover it, yes no? yeah एंड तुम नहीं करते तो उधर तुमको बहुत से डांट पड़ी जाती है कि तुम कैसे नहीं कवर कर सकते हो, बाकी लोगों ने कवर किया। सो एक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट टिल द टाइम यू आर नॉट यू नो मेंटली प्रिपेयर्ड कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, तब तक तुमसे नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बी ऑन योर टिपटोज एंड यू हैव टू बी वेरी फियरलेस व्हेन यू आर इन दिस फील्ड। राइट, ओके। सो ये चीज़ दृष्टि का कहना है कि इफ़ यू थिंक लाइक कि मुझे जर्नलिज्म में परस्यू करना है स्पेसिफिकली टू वुमेन, तो यू हैव टू बी वेरी फियरलेस, लाइक दैट इज योर फर्स्ट वेरी मेन पॉइंट जो आप कन्वे करना चाहेंगे। सेकंड थिंग, आपने अभी जस्ट कहा था दैट ऐसी कोई भी स्टोरी आती है, इधर यू हैव टू ब्रेक इट और समवन एल्स विल डू इट, नो? तो एक चीज़ अब तक के इन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी स्टोरी के साथ है, या फिर कौन सी ऐसी स्टोरी आपने कवर की है जो यू नो आपको हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रहती है, यार दिस थिंग आई हैव डन, यू नो, सो दैट इज अ गुड थिंग, और मे बी कोई भी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है या फिर कोई अच्छा मोमेंट भी हो सकता है दैट यू कवर्ड दैट स्टोरी एंड ऑल? I have, I think, 2 stories which are my favorite. We would love to personally. listen those. So one was definitely Ganga Jamuna. Okay. Actually 2021 में नागपुर पुलिस ने उधर पूरा यू नो सील कर दिया था एरिया, just after the lockdown, if I'm not wrong. So one very random day I was sitting in my office, a very blah day, gloomy day and everything. तो I had got a Instagram DM, वो messages request में चले जाता है, Right. and उधर they just told me कि you know रेड लाइट एरिया में आपको गंगा जमुना में आपको देखना चाहिए क्या हो रहा है, एंड Okay. जिसका मेरे को मैसेज आया था that happened to be one of the sex workers' daughter. Okay. So she had reached out to me. So that time I went to my you know boss and I was like, listen, this could be a very nice story, अभी तक नागपुर में करा नहीं because this has just happened. And मेरी बॉस पहले थोड़ी हेजिटेंट हो गई थी कि यू नो आर यू श्योर यू वांट टू गो देयर, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक रेड लाइट एरिया का नाम उसमें था। सो शी इज लाइक कि इफ यू वांट टू देन यू गो, बट यू हैव टू टेक अ मेल कैमरा पर्सन विद यू, यू आर नॉट गोइंग अलोन। आई सेड ठीक है मैं चली जाऊंगी, एंड आई पिक्ड अप माई बैग एंड आई लेफ्ट। एंड मनोज, व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग इनसाइड, नो थोड़ा डर लगा, बट या थोड़ा डर लगा, सब लोग देख रहे थे इधर क्या हो रहा है, हु एम आई, obviously एक न्यू पर्सन इधर एंटर कर रही है। बट मनोज, you won't believe, in the next 5 minutes I was sitting on the ground with them. There were 30-40 ladies sitting around me and they made me feel so comfortable and they made me feel so homely. खाना पानी सब दे रहे थे मेरे को. They were all talking about their problems and they were very free to talk about it. And I really loved that. And that is, I think, my best story. जिसकी वजह से I've got a session with the National Women's Commission also. Wow. For sex workers only. So I think that is one of my best stories. And I think दूसरी story would be last year नागपुर में इतना heavy rainfall हो गया था that airport road पे इधर तक पूरा पानी आ गया था. So natural swimming pools yeah, बन जाते हैं. Exactly. So if you want the story to be interesting, you have to make it interesting. So I decided, you know, उस टाइम पे मैंने thankfully dress पहनी हुई थी तो मैं पानी में उतर गई. And I did not have a camera person with me. तो उधर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने पकड़ा, तो वन गाय वाज होल्डिंग माय हैंड लाइक दिस, अदर गाय वाज शूटिंग, और दूसरा वाला मेरी चप्पल पकड़ के खड़ा हुआ था. सो आई थिंक दैट वाज अनदर, इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट. और जैसे ही मैं बाहर निकली मैं गिर गई, मैं फिसल गई उधर ही. I'll not laugh on this. Yeah. But it was nice. I think that is a very good memory I have. और वो वीडियोस पे एक्चुअली
कंसर्न से ज्यादा सब हंस रहे थे कि व्हाट डू यू डू। वेल रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट नहीं, एक नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, साइक्लोन गुजरात के समुद्री तट पे हिट किया था। तो दैट टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग द न्यूज ना, हर न्यूज चैनल पे हर रिपोर्टर कोई ऐसा पेड़ पकड़ के खड़ा है, कोई लेट के खड़ा है, तो कोई वो अपनी अवस्था में थे। बट वो हमें देखने में फनी लगता है, बट एज यू सेड दैट कि यू हैव टू कवर इट, बट यू कैन नॉट, यू डोंट हैव रिसोर्सेज एंड यू डोंट हैव दैट मच सपोर्ट, लाइक और आपको अच्छा न्यूज भी देना है। तो ये तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कर रहा है भाई टीआरपी के लिए, बट नो आई गेस देखो इट इज टफ, ठीक है। इफ यू सी मी, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, थोड़ा ओसीडी है, सब साफ चाहिए, वैसा वैसा चाहिए मेरे को। So when I had decided कि okay fine, I should be getting down in that water if I want my story to be nice. तो जब मैं उधर उतरी तो like क्या हो रहा है वगैरह। But in the end, sometimes you have to do it. Sometimes you have to give up your thought of being clean or anything, because journalism is a field like that. You will get dirty, you will get sweaty, but in the end of the day, you have to deliver your story. That's it. True though. Well, that's दृष्टि's story. दृष्टि के दो अच्छे experiences अभी दृष्टि ने share किए. Also दृष्टि, because we both are from Nagpur. मेरा भी यहीं पर भाई जन्म हुआ है, यहीं पर बड़ा हूँ, यहीं पर पढ़ा हूँ, और जो कार्य कर रहा हूँ वो भी यहीं से कर रहा हूँ. And आपने अपना education भले ही बैंगलोर से किया हो, but right now you're working in Nagpur. Yes. So you know lot of things about Nagpur. I just want to know कि what do you think? Because अभी कैसा है कि जो हब है जर्नलिज्म के लिए, दैट इज, आई बिलीव दैट इज दिल्ली, राइट, एंड यू आर वर्किंग इन नागपुर. तो व्हाट डू यू थिंक कि नागपुर में जर्नलिज्म का वो जो स्कोप कहते हैं हम, वो किस लेवल तक के है एज कम्पेयर टू दिल्ली, या फिर कुछ और सिटीज का भी अगर उसमें एड ऑन कर दे, तो कितना डेवलप हुआ है नागपुर towards journalism? I feel after I've come back from Bangalore, which was in 2020. Yes. नागपुर काफी ज्यादा डेवलप हुआ है when it comes to journalism. But definitely when you compare it with Delhi, now see, Delhi is a political hub. No doubt. उधर सारे decisions वगैरह सब दिल्ली में ही बनते हैं, तो we cannot ever compare Delhi with Nagpur. If नागपुर में if it becomes महाराष्ट्र का कोई हब, जैसे बॉम्बे है अभी, मुंबई है अभी, महाराष्ट्र का सारा political development takes place in मुंबई. अगर नागपुर में रहा तो then ठीक है, for once we can compare it to Delhi. But Delhi सारे न्यूज़ चैनल्स उधर ही है, because the most important decisions are being done over there only. So नागपुर का जितना I feel नागपुर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिटीजन जर्नलिज्म का आ गया. Yes, yes. So because if you see Instagram पे I get at least 10 story mentions in a day कि इधर उधर क्या चल रहा है. Because obviously it is impossible for me to be everywhere at one point. So that's when people step in and they have started, using social media in such a clever way कि उनको कुछ भी दिख रहा है तो they will, take a picture, take a photo and they will send it to me. That's the power of citizen journalism. And that's how I think journalism is developing at a very fast pace in Nagpur. No doubt. Yes. Right. So, but हाँ, definitely देखा जाए तो scope, this is my personal opinion कि स्कोप बहुत ज़्यादा नागपुर के बाहर है, बट there's always a chance for changing things in Nagpur as well. क्यों नागपुर में स्कोप हम बना क्यों नहीं सकते हैं? That is the main thing. अगर बॉम्बे में हो रहे सारे political developments, then things can happen in Nagpur also. So yeah, I think इतना डिफरेंस अब इतना ज़्यादा नहीं रहा है. नागपुर में भी इतने सारे लोकल न्यूज़ चैनल्स है, एंड दे हैव अ ब्रिलियंट टीम ऑफ जर्नलिस्ट वर्किंग अंडर देम. नो डाउट. सो आई डोंट थिंक कि इतना डिफरेंस बाकी रहेगा, बट वी कैन ऑलवेज नेवर कंपेयर इट विद दिल्ली, क्योंकि पॉलिटिकल हब उधर है, नागपुर में नहीं है. आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस वी हैव ओवर हियर. Alright, so Delhi and Nagpur comparison करें तो वो different level पे जाएगा, but at the same time Nagpur is also doing very good thing in terms of journalism itself, right? Well, दृष्टि, एक चीज़ है जो हम हमारे हर एपिसोड में कवर करने की कोशिश करते हैं, that is कि एजुकेशन सिस्टम इन नागपुर. तो स्पेसिफिकली नागपुर के जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, स्टूडेंट्स है, उन्हें व्हाट डू यू थिंक, आर दे गेटिंग इनफ एक्सपोजर इन नागपुर इटसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन और मास्टर्स और एनी डिप्लोमा कोर्स बाय RTMNU? तो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट?
So specifically RTMNU, I really can't comment because मैं उधर पढ़ी नहीं हूँ. Okay. And coming to exposure and getting opportunities for students, I feel कि हाँ ये I think topic काफ़ी ज़्यादा बाहर भी आता है कि as soon as a student completes their bachelor's or anything, jobs के लिए they always move out. Right. And देखा जाए तो technically when मैं 12th के बाद नागपुर से मूव आउट हुई थी, that was the main reason because I knew कि इधर जर्नलिज्म का मेरे को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स मिलेगा नहीं तो मैं ऑब्वियसली anybody wants to stay close to their family. But मेरे को इधर वो ऑप्शन मिला नहीं, so that's why I had to move out for better opportunities for a better education system. तो नागपुर में I feel कि हाँ थोड़ा lacking है अभी तक for a very good and a professional working system as well as a education system. बैंगलोर बॉम्बे में देखा जाए तो इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर ऑल्सो. राइट. स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बिकॉज नंबर वन दे आर इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. You know, after 12th, a lot of students prefer to go out, settle outside. Exactly. Get different exposure, jobs बाकी बाहर करते हैं. So for example, Manoj, how I was a journalism student, I decided to leave everything in Nagpur and go outside because definitely the exposure is much more. I know कि इधर स्कोप है बट इतना स्कोप नहीं है जितना मेरे को बाहर मिल सकता है. एंड आई थिंक दैट प्रॉब्लम एवरी स्टूडेंट, नॉट जस्ट जर्नलिज्म स्टूडेंट, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. राइट. इधर इतनी कंपनीज आ नहीं पा रही है या फिर आना नहीं चाहती है, थिंकिंग दैट यू नो इतना उन लोगों को स्कोप नहीं मिलेगा एक्सपैंड करने का. एंड दैट्स व्हाई पीपल आर जस्ट लीविंग नागपुर एंड गोइंग, व्हिच इज एन एक्सट्रीमली सैड सिचुएशन. Right. बिकॉज नागपुर इज नोन टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग cities in the country. Yes, not in the only in the country but in the Yeah. world as well. Globally भी Exactly. किसी तो मतलब हम लोग इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेट्रो वगैरह भी आ गया, देन क्यों स्टूडेंट्स के लिए अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटीज आ नहीं पा रही है नागपुर. Right, मतलब right. दैट मींस वी आर लैकिंग समवेयर एज अ सिटी Exactly. कि क्यों हो रहा है. एंड स्टूडेंट्स फिर ऐसा यही ट्रेंड चलता जाए तो फिर यंगस्टर्स सब बाहर हो जाएंगे, सिर्फ ओल्डीज रह जाएंगे नागपुर में. Recently what happened ना दृष्टि, मैं एक इवेंट करके रिटर्न नागपुर आया था and I was traveling from airport station to the automotive square. ओके. तो one of my female friend from Bombay, she asked me, नागपुर में मेट्रो भी है? एग्जैक्टली. राइट. सो मैं ये क्वेश्चन सुन के शॉक हुआ एंड उसे वो स्टोरी देख के शॉक हो गई थी बिकॉज कि उन्हें नहीं पता था नागपुर में मेट्रो है. सो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स डेवलप्ड इन आवर सिटी बट वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर फॉर स्टूडेंट्स टू स्टे इन द सिटी. एग्जैक्टली. राइट. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है कि एज अ यूथ, यू नो, हम यूथ एक चीज़ कन्वे कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ नहीं हुई है और कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो वो ऐसी कौन सी चीज़ आपके ओपिनियन में है जो आपको लगती है कि नागपुर में नहीं ये बेस्ट होनी चाहिए या एकदम क्लास टॉप क्लास होनी चाहिए? See, number one, being a journalist. Now right now I will comment as a journalist. Okay, what I please, feel. please. कि number one, the political activity needs to increase in Nagpur. When the Okay. political activity increases in Nagpur, that's when you know the whole competition starts कि तुमने कितना development लाया नागपुर में to stay in the government. Okay. So I feel having more political activities, ठीक है, it would be bad also कि इतना politics चल रहा है हो रहा है, but it will be good in a way also कि we are getting more opportunities. The present government or the former government have been trying to get more things into Nagpur. तो वो एक competition हमेशा रहेगा. Okay. दूसरी बात लैक ये हो रहा है कि सारा political development is taking place in either मुंबई और पुणे. Okay. तो लोग तो ये जो सारे I feel leaders जो है they are concentrating more on developing Pune and Mumbai. Okay. But why not Nagpur? Nagpur has been Gadkari ji ka stronghold and I think he has done a tremendous job in And Nagpur. Nagpur, no doubt. I think ऐसा कोई कर नहीं सकता था. So I feel कि if we have more scope for political activities, we will definitely get much more opportunities. ठीक है, थोड़ा political tense माहौल ज़्यादा हो जाएगा. हाँ. But come on, we can also look at the positive side of having a good developed city. All Because right. in Nagpur, when you said कि you know आपकी जो friend थी बॉम्बे से आई थी उसको पता नहीं था कि मेट्रो है. When I was in Bangalore, my friends did not even know where Nagpur is, and I had to. And Nagpur being the center of the India, India. they still did not know where Nagpur is. That means we have a lot to improve.
Right, we have to, you know, do something like that Exactly. that will create an impact to the entire country. मतलब इट्स नॉट लाइक कि नागपुर कोई अब नागपुर छोटा शहर नहीं माना रहा। जाता है, इट्स लाइक अ टियर 2 सिटी नाउ, बट क्यों अभी तक नागपुर को इतना बैकवर्ड माना जा रहा है? आई डोंट गेट इट। पीपल डोंट वांट टू कम टू नागपुर ये बोल के कि नागपुर में क्या ही है क्या करने है को। यार, ऐसा मत बोलो यार। एग्जैक्टली यार, हमारा We घर are है in यार, नागपुर। एग्जैक्टली। ओके, वेल ये तो सब दृष्टि कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती थी, एंड वी वुड लव टू पर्सनली लिसन इट फ्रॉम यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों से आपके बारे में सुनता हूँ, और इसके पहले आपको बुलाने के पहले भी व्हेन आई टोल्ड समबडी कि यार यू नो आई एम टेकिंग इंटरव्यू ऑफ दृष्टि शर्मा, सो दे सेड, यू नो, कि यार आई हैव अ क्रश ऑन दृष्टि। Oh God. सो लॉट ऑफ पीपल आई नो कि नागपुर से बहुत से लोग हो गए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि who is your crush, but I'm just gonna ask, who is your celebrity crush, Drishti? आदित्य रॉय कपूर। Oh, freak, instant answer. I love him. He's too handsome. Wow. मतलब, and Ranbir Kapoor, I think. So the people who are boys specifically जो नागपुर में सोच रहे हैं कुछ, भूल जाओ भाई, आदित्य रॉय जैसी शक्ल आपकी है नहीं। अगर आपके पास है तो डीएम कर देना। So very nice, okay. और आदित्य रॉय कपूर दृष्टि का फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश, ओके। दृष्टि, नागपुर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूँ, तो यू हैव टू आंसर दोस्तों। ऐसी कौन सी फेवरेट पब्लिक प्लेस है दृष्टि के लिए जहाँ पर दृष्टि हमेशा मी टाइम स्पेंड करने जाती है, चिल करने जाती है, हैंग आउट करने जाती सीपी है? क्लब। ओके, मतलब आई डोंट नो इफ इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी पब्लिक हाँ प्लेस, हाँ हाँ, बट आई थिंक इट इज माय गो टू प्लेस। ओके। मैं हमेशा उठ के या उधर, मतलब आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर स्विमिंग, उधर सब कुछ है, तो मैं एवरी इवनिंग यू विल फाइंड मी देयर ओनली रिगार्डलेस। अब ये चीज आपने पब्लिकली बता दी है, तो डोंट गो इनटू सीपी क्लब ओनली। ओके ओके, सो दृष्टि, इसके बाद ना आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो कि नागपुर से स्पेसिफिकली रिलेटेड Okay. है। तो डिस्क्राइब नागपुर इन 3 words. Beautiful, hot. It's like, sorry, it's like I'm describing someone, but yeah, Nagpur is. Not again Aditya Roy Kapoor, please. Nagpur has become beautiful. हाँ. It is definitely very warm or very hot, I should say, and unpredictable. Unpredictable. Yeah. 3 Nagpuri slangs which you like and 3 Nagpuri slangs which you don't like. Oh, this is tough. I think I like how. How? It's how. फिर I think नागपुर people have this thing, एक मैंने रील में भी किया था कि किसी को रास्ता बता रहा था तो दिल बोले कि आगे जाके सामने से लेफ्ट में बिल्डिंग गिरेगी। व्हाट डू यू मीन बाय गिरेगी? गिरेगी, उधर है बिल्डिंग, गिरेगी नहीं होता है। इधर वो गिरेगी, उसके बाजू से अपने को ये लेना है। ये लेना है, ये अलग ही है एकदम। हाँ। एंड अनदर वन वुड बी माहौल। Mahol. I was expecting this, you know, because Mahol is my personal favorite slang of Nagpur. It's like कि माहौल बना हुआ है मामा, ऐसा वो बात करते Mahol, mama, yes, yes, yes. It's a bit, you know, सुनने को मेरा मन करता है। Right. Okay, next is again 3 Nagpuri slangs which you don't like. अरे this is very tough यार। हाँ. I think there must be like a lot. मेरे को इतने सारे तो मेरे को पता भी नहीं होंगे, ये सब तो थोड़े बहुत पता थे। Okay, you don't want to listen. हाँ, those. मतलब मेरे को Mhm. पता ही नहीं मैं बोलूँ क्या। Still, मतलब let's give it a thought ना, थोड़ा सा brainstorming करके. चेंगड़ मचा रहे हैं। चिंगड़, अरे बाप रे. I heard this. मैं Yes, जब yes, वो yes, yes. क्या कहते हैं RTMNU में कुछ प्रोटेस्ट था, तो there were so many चेंगड़ी people कर रहे हैं। starting चेंगड़ी कर रहे हैं, and मैं पीछे देखूं चेंगड़ क्या है ये सब and everything. Okay. And अच्छा, I feel कि this term पोट्टे, I don't like it. I don't know, for some reason don't I'm like it, not okay. very fond of this पोट्टे, word. पोट्टिया. हाँ, क्या है ये? And I think 2 are I think more than enough. I don't know. अब मेरे को Perfect दिमाग दृष्टि, में भी नहीं आ बहुत रहा। मतलब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एटलीस्ट 2 आए, और वो कुछ 2 तो आए आए। जो कि एक्चुअल में नागपुर में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में हमेशा Yes. चलते रहते हैं। ऑलराइट, सो तो दृष्टि, ये सारी चीजें थी नागपुर के बारे में। Yeah. अब एक ऐसा सवाल जिसके साथ मैं इस टॉक शो को यहाँ पर फिलहाल एंड करना चाहूंगा, एंड माय क्वेश्चन इज कि अगर दृष्टि आज जर्नलिस्ट नहीं होती तो क्या होती? I love clothes. I love dressing up. Okay. I love fashion.
So I think something in the fashion industry, probably a fashion, मतलब designer तो I don't think I can, because मैं जितना actually नागपुर में लोगों को देख भी रही हूँ, like there are so many people pursuing fashion designing and they're doing extremely well. So जब भी मेरे को personally collabs भी आता है fashion के, I never deny it because I love fashion. Okay. तो if actually मेरे को political journalism से भी पहले I wanted to do fashion journalism. Oh. Yeah. But then थोड़ा बहुत दिमाग फिर politics ज़्यादा interesting लगा तो I shifted to political journalism. But yeah, if I wouldn't have been a journalist, something in the fashion industry, fashion stylist या फिर fashion PR, I love fashion, so I would What have done about that. model? Model नहीं, इधर खाना नहीं रुकता है. They want zero figure, कहाँ से आएगा zero figure? What an honest answer, Yeah. भाई. Okay, दृष्टि. So अगर दृष्टि वही कह रही है कि अगर जर्नलिस्ट नहीं होती तो Yeah. फैशन डिजाइनिंग या फैशन Styling में, yeah, में something कहीं ना like कहीं that. यू लाइक आप देख सकते थे दृष्टि को. ओके, सो दृष्टि, दैट्स इट फॉर टुडे. बट जाते जाते एक चीज मैं कहना चाहूंगा, प्लीज, लाइक थ्रू दिस इंटरव्यू ओनली, थ्रू दिस टॉक शो ओनली, किस तरीके का मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे टू आवर ऑडियंस? I would just want to say कि you need to be fearless if you want to go ahead in life. Do not let other people's opinion affect you so much that you stop working on yourself. There is always a room for improvement. Do not let what others say affect you so much that you stop growing yourself. There is, there's a lot to explore in life. So just do not be seated in just one room. Go out, explore. This is the time. You have the time. You have the energy, then why not? Don't waste it. So sweet of you. Thank you so Thank much. you It so was much, really Manoj. great having Drishti Sharma with us, and thank you so much, Drishti, one Thank more you. time. हमें सच में बहुत मजा आया. I loved it. इवन दो मुझे आपको इंटरव्यू करते हुए मजा आया और मेरी मेरे को इंटरव्यू देने में आज बहुत मजा आया. I'm like the first time I'm giving an interview to Very nice. someone. So nice. So thank you so much one more time. And please And- support Manoj. He's doing wonderful. And ये talk show, I think it shows the real side of so many people in Nagpur. And I'm sure everyone loves to see the real side and not Definitely. so serious side. So I love it. And thank you so much for having me here today. Thank you so much to you, to Drishti. Thank you.